So welcome NEET aspirants 2022. So this is the live interaction of physics paper S1 series. So the first question goes like this. It's a match list question. You have electromagnetic waves and you have been given the wavelengths. So you have to choose the correct option. So first of all, this type of question you already know. In the electromagnetic spectrum, we have basically rich men in London use extra gold coins, right? So these are the radio waves, right? This is your microwaves. This is infrared, light, visible light, ultraviolet, X-rays, gamma rays, cosmic rays. So as you go like this, the lambda decreases and frequency increases. So अगर आपके क्वेश्चन में आपको देखा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास एक्स रेज के पास सबसे कम होगी ना, यहाँ पे आप लास्ट और फर्स्ट को भी देख सकते हो आराम से. इट्स मतलब आपको वैल्यूज प्रिसाइसली अगर याद भी नहीं होंगे तब भी आप आराम से कर सकते हो. तो ये देखिए आप रेडियो वेव्स है, तो रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा होगी. सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा आपके पास यहाँ से ए से बन जाएगा 2, और उसके बाद आपके पास एक्स रेज के पास सबसे कम होगा ना. आप जानते भी हैं एक्स रेज एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होता है वेवलेंथ, तो ये इसके पास जाएगा. सो इन्हीं दो ऑप्शन से भी आप देख सकते हो. इट इज अ बिट ट्रिकी हियर टू सेव द टाइम आल्सो. सो इफ यू कैन सी फ्रॉम हियर, ए ऑप्शन हैज टू गो टू 2. So A has to go to 2. There is no other A having 2. So we don't have to see at all. But if you want to check the last one also, that is D. D goes 10 to the power minus, that is 1. So D has to go to 1. So D has to go to 1. So this option should be the correct option. Right? So let's move to the next question. A square loop of side 1 meter and resistance 1 ohm is placed in a magnetic field of 0.5 Tesla. If the plane of the loop is perpendicular to the direction of magnetic field, the magnetic flux through the loop is. So this is 1 ohm is just for confusion and chaos. Essentially we know that आपके पास अगर एक लूप होता है, आपके पास एक स्क्वायर लूप है इसमें, तो स्क्वायर लूप का जो साइड है वो 1 मीटर है, तो उसका सारे साइड्स बराबर होंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है. हम मान सकते हैं सपोज लेट्स टेक इट एज डॉट. It's perpendicular to the plane of this loop, right? So you know what is the formula for flux, magnetic flux. So magnetic flux is B dot A. Number of loop, इसमें loops क्या है? एक ही loop है, तो वरना में n से मल्टीप्लाई करना पड़ता. तो आप B और A की डायरेक्शन सेम ले सकते हो यहाँ पे. तो it is outward, इसको हम डायरेक्शन आउटवर्ड ले सकते हैं एरिया का. So that means it will be BA cos of 0. So simply that is B is magnetic field. The magnetic field is 0.5. into area is side square, that is 1 square, so it has to be equal to 0.5 Weber. 0.5 Weber. And इसमें रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है. अगर चार्ज निकालना होता तो शायद इसका रोल हो जाता. So 0.5 Weber is the correct answer. So next. So a copper wire of length 10 meter and radius is equal to this. So you have to be careful. It is the radius. So radius is 10 to the power minus 2 upon root of pi. Has an electrical resistance of 10 ohm. So resistor, you have to be careful. So it is small r radius, so capital R resistance is 10 ohm. So the current density in the wire for the electric field 10 volt per meter. So the electric field is basically over 10 volts per meter. And Ohm's law. So Ohm's law says J is equal to sigma E, right? So you can write it as J is equal to sigma can be written as 1 by rho. So it's 1 by rho into E, right? So आपको निकालना क्या है इसमें? आपको करंट डेंसिटी फाइंड करना है, राइट? सो रो हम कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि रो इज इक्वल टू, आप जानते हैं रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए. रो एल बाई ए. सो यहां से हमें रो निकालना है, तो रो किसके बराबर आएगा? इट विल बी आर इंटू ए अपॉन एल. आर इंटू ए अपॉन एल. यस. सो ये कैलकुलेशन हमें करनी है. अब एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर. हम इसको सिलेंडर ले रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर अगर मैं करूंगा यहां पे, तो पाई आर स्क्वायर, आर इज दिस, पाई आर स्क्वायर, दैट इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए आप यहां पे स्क्वायर और रूट कट जाएगा,
स्क्वायर रूट कट जाएगा और ये पाई इसके साथ कैंसिल होगा और यहां पे 10 की पावर -4 आएगा। सो 10 की पावर -4 आपके पास मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ रहा है। सो अगर आपको एरिया यहां पे मिल रहा है तो रो किसके बराबर होगा? रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है 10, रेजिस्टेंस इज ऑलरेडी 10 एंड एरिया आपका बन रहा है 10 रेज टू द पावर -4 अपॉन लेंथ आपकी ऑलरेडी गिवन है 10 मीटर। सो 10 and 10 is gone. So you get rho is equal to 10 to the power -4. So putting the value here, so it is 1 by 10 to the power -4, 1 by rho into electric field, that is equal to 10. Electric field is already 10. So what do you get? You get simply J is equal to, I will write here, J is equal to, finally the answer is here, J is equal to this 10 to the power 4 will go into the numerator, it will become 10 to the power 5. So it has to be 10 to the power 5 ampere per meter square. That should be the correct answer. So it is this. Next, the ratio of radius of gyration of a thin uniform disc about an axis passing through its center and normal to the plane of the normal to the plane. So I will take it like this. So it's a disc. This is your axis, which is normal to the plane of the disc. Let us suppose the disc has a radius of r, right? So what is the moment of inertia about this axis? So about this axis is disc के लिए होता है mr²/2. About this axis I am talking. So आपको बताना है to the radius of gyration. So first of radius of gyration, जो आपके पास moment of inertia होता है उसको हम लिखते हैं बराबर mass times k square, where k is called the radius of gyration, right? So आप यहां से m को m कैंसिल हो जाएगा तो k किसके बराबर? लेट मी से दिस k1 जो इस केस में पहले आ रहा है। So k1 will be equal to the root, that is r upon root 2. R upon root 2 is going to the first radius of gyration when the axis is like this. Secondly, it is telling you to the radius of gyration of the disc about the diameter. So what about diameter axis? So if I use a different color here, so let me take this axis and this axis. These are the two diametric axes I am taking. You can take it this way or this way as well. So these are the two diametric axes and this is the perpendicular axis to those two axes, right? From perpendicular axis theorem you know that अगर इसके about moment of inertia I होगा, इसके about भी I होगा, right? क्योंकि दोनों इसी के plane में lie कर रहे हैं। तो इसके about फिर क्या होगा? इसके about जो moment of inertia होगा, let me call this as I dash. So I dash has to be equal to I plus I, that is equal to 2I. So what is I equal to? So I will be equal to I dash upon 2. What was I dash? I dash already was this, right? So it was equal to mr²/2. So it will be mr² by 2 by 2 by 2 by 2. It is equal to by 4, right? So this is your I. This is the moment of inertia about the diametric axis. So इसके लिए भी हम radius of gyration निकालेंगे. So moment of inertia को लिखेंगे बराबर mk2 square के बराबर, right? इसके about नया जो radius of gyration होगा उसको मैं k2 बोल रहा हूँ. So if you solve this m goes off. So what is this k2? So k2 is going to be equal to, so इसका हमें रूट लगाना पड़ेगा तो ये बनेगा हमारे पास r/2. So now k1 is r/2, k2 is r/2. So what is the ratio? So the ratio is simply equal to r/2 divided by r/2. So r goes off, 2 goes into the numerator, so it will be √2:1. So √2:1 has to be the correct option. Next, the angle between the electric lines of force and the equipotential surfaces. So it's a very common question that if the electric field is like this, then the equipotential points are these points, right? These are the equipotential points. So if you connect this, you make a plane which will be the perpendicular to electric field lines. You know that for any equipotential surface पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज पे कोई वर्क डन नहीं हो सकता बिटवीन टू पॉइंट्स, बिकॉज द पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज जीरो. इक्विपोटेंशियल मींस की पोटेंशियल हर जगह सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं हो सकता, बिकॉज अगर होगा तो वहां पे वर्क डन आ जाएगा, फिर उसका मतलब वो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा ही नहीं. इसका मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उसके साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है. इट्स अ वेरी कॉमन पॉइंट. नेक्स्ट, द प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल हैव. सो आप जानते हो प्लेन एंगल किसको, प्लेन एंगल जो थीटा से आप डिनोट करते हो r कैप ऑन रेडियस,
राइट, आर्क अपन रेडियस करते हो तो आप जानते हो इसमें आर्क भी लेंथ होता है, इसमें मीटर, नीचे भी मीटर आएगा, तो मीटर और मीटर जब कैंसिल करेगा ना तो इसका हमें यूनिट होता है, इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास, रेडियन, ऐसा यूनिट, लेकिन इसके डायमेंशंस नहीं होते, डायमेंशंस नहीं होते इसके। और सिमिलरली हमारे पास जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल आप डिफाइन करते हो यहाँ पे एरिया अपॉन आर स्क्वायर, तो आप जानते हो इसका भी मीटर स्क्वायर आएगा, इसका भी मीटर स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे आपके पास यूनिट जो डायमेंशंस है वो नहीं रहेंगे, बट इसका भी यूनिट होता है स्टेरेडियन, इसका यूनिट होता है हमारे पास स्टेरेडियन, तो उसका मतलब यूनिट होगा डायमेंशन नहीं होंगे, यूनिट्स बट नो डायमेंशंस। नेक्स्ट, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन changes from 1200 rpm, rpm का मतलब 1200, रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक रेवोल्यूशन में कितना घूमता है पार्टिकल, 2 पाई एंगल घूमता है ना, 2 पाई रेडियन पर मिनट का मतलब हो गया 60, अगर आप इसको कैंसिल करेंगे 6 2 12 0, यह आ जाएगा आपका 40 पाई, सो 40 पाई आपका ओमेगा हो गया, 40 पाई आपका क्या हो गया, ओमेगा, आरपीएम तो ओमेगा ही होता ना, लेकिन आपको कन्वर्ट करना पहले रेडियन में, रेडियन पर सेकंड, बिकॉज इसका यूनिट जो होगा वो रेडियन पर सेकंड होगा, तो आपके पास ओमेगा आ गया इनिशियली, सो इट चेंजेस टू 1320, सो दैट मींस 1320 आरपीएम, इसको हम किसके बराबर लिखेंगे, 1320, रेवोल्यूशन हो गया 2 पाई, पर मिनट हो गया 60, सो 0 0 goes off, 6 1 6 2 12, 6 2 12, right, so it will be 22 into 2, that is 44 pi, so 44 pi आ रहा है। सो नाउ अब आप जो ओमेगा फाइनल है तो आपको अल्फा फाइंड करना है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो दैट इज अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन ओमेगा अपॉन टाइम, सो ओमेगा कितना चेंज हो रहा है, इट इज 44 पाई माइनस 40, दैट विल बी 4 पाई अपॉन इन 16 seconds, so we have to check it once more, so it's 1200 rpm, 1200 in 2 pi 60, 0 0 goes off, 6 to the 12 0 40 pi, 1320 0 0 goes off, 6 to the 12 6 to the 12, that's 44 pi, right, so the change in omega is equal to 44 minus 40, that's 4 pi upon 16, right, so 16 seconds per minute, wait a sec, so 12, so this is 1320, it is 3120, sorry, this is 3120, sorry guys, 3120, so it's 3120 2 pi upon 60, so that has to be equal to, so it is 0 0 goes off, 12, so it is 52 into 2, that's equal to 2 2s are 4, 2 5s are 10, so that has to be equal to this, right, so this should be now correct answer. So we have to find the change, so change is 104 pi minus 40 pi upon 16, right, so it will be 64 pi upon 16, so 16 1 and 16 4, so that will be equal to 4 pi radian per second square, that should be the correct answer, right, so it is 4 pi, this is the correct answer. So next, two resistors of resistance 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel in an electrical circuit. The ratio of the thermal energy developed in 100 ohm to that in 200 ohm in a given time is, so two are connected in parallel, right, so first one let me take it as per the sequence, that is 100, and the second one is 200, and there is some supply, maybe some supply, some voltage is given to it, right. Now you have to see thermal energy, that is the heat developed in the two resistors, V square by R we can use, because in parallel voltage remains same, so you have to use V square by R into T, right, this is the formula. Now first resistance is R1, so I will write V same because they are in parallel, so I will write V square upon R1 is your 100 into some time T divided by, we have to find the ratio, right, we have to find the ratio, so it will be the next one will be V square upon 200 into T, right, so T goes off, V square goes off, so it will be 200
upon 100. So these two go off, that will be equal to 2:1. So the correct answer should be 2:1. It's simple, you have to use voltage basically here. Two objects of mass 10 kg and 20 kg. So one is 10 kg, another is 20 kg, are connected to two ends of a rigid rod of length 10 meter. So this distance is 10 meter. Of negligible mass. So this rod has no mass. The distance of the center of mass of the system from the 10 kg is. So you have to find the center of mass from this. Let us suppose that is at x. This is the cm, center of mass. So x center of mass will be equal to, 2-point formula simply. That is, you can assume this at the origin. So what you do is that you use the opposite mass. The opposite mass, that's 20, into total distance, that is 10, divided by sum of masses. That will be 30. So this 0 has to go. So answer has to be 20 upon 3 meter. 20 upon 3 meters from 10 kg. So this should be the answer. Next, an ideal gas undergoes 4 different processes from the same initial state as shown in the figure. These processes are adiabatic, isothermal, isobaric, isochoric. The curve which represents the adiabatic process among 1, 2, 3, 4 is. So it's a very popular question. You know that the slope dp by dv, that's equal to minus gamma times p by v, right? So gamma adiabatic के लिए जो gamma आप isothermal के लिए 1 लेते हैं ना इसको. So adiabatic के लिए बड़ा होता है 1 से बड़ा. उसका मतलब slope किसका ज्यादा होगा? तो स्लोप जो आपके पास इन कर्व्स में से होगा, सबसे ज्यादा स्लोप एडियाबैटिक प्रोसेस का होगा. ये जो है इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये आपके पास आइसोबारिक प्रोसेस हो गई, ये आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस हो गई, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका स्लोप इनफाइनाइट है, इसका 0 है. तो इन्हीं के 0 और इनफाइनाइट के बीच में ही आपका सारा स्लोप आएगा. तो अब बताइए इसका स्लोप ज्यादा है थर्ड का कि सेकंड का? अगर आपको स्लोप चेक करना है ना, तो सिंपली यहाँ पे कोई चीज रख दो या यहाँ पे चीज रख दो. बताओ कौन जल्दी गिरेगा? तो जाहिर सी बात है यहाँ जल्दी गिरेगा. इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप थोड़ा कम है. देखो तो ज्यादा स्लोप 2 का है, तो ये कौन सा होगा जाएगा? एडियाबैटिक. तो 2 करेक्ट आंसर है. 4 2 इसमें से करो है, लेकिन ऑप्शन में 4 है. नेक्स्ट, ऐसा टाइप का सवाल है, मेजॉरिटी सवाल. द पीक वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स इज इक्वल टू. तो आपको पीक वोल्टेज आपको पता है, आरएमएस वोल्टेज क्या होती है? पीक वोल्टेज अपॉन √2, राइट? सो पीक वोल्टेज बराबर हो जाएगी ना √2 टाइम्स आरएमएस, वीआरएमएस. तो √2 टाइम्स आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सोर्स. पीक वैल्यू वही होती है. तो सही तो बोल रहा है, पहला ही सही बोल रहा है. लेकिन आरएमएस इज पीक वैल्यू अपॉन √2, तो आपके पास जो पीक वैल्यू होगा वो होगा √2 टाइम्स आरएमएस. नेक्स्ट, द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर इज. तो आप जानते हो यार एनर्जी किसके बराबर होता है? पावर इनटू टाइम. पावर कितना है? ये आइडियल है, आइडियल, कोई लॉस नहीं है. तो पावर कितना है? पावर है 100. किलो का मतलब हो गया 10⁻³ वाट का मतलब हो गया जूल पर सेकंड. इनटू करेंगे हम इसके साथ टाइम. टाइम हमारे पास है 1 आवर. 1 आवर को हम लिखेंगे 60 × 60, राइट? बताइए कितना आएगा? 6 6 36 इंटू 10 की पावर 1 2 5 6 7 10⁻7 जूल. खत्म. दिस इज द आंसर, राइट? In half wave rectification, if the input frequency is 60 Hz, then the output frequency would be. अरे यार, जो हाफ वेव रेक्टिफायर आप लगाते हो, जब आप इसको इनपुट देते हो सिग्नल, हाफ वेव रेक्टिफायर, अगर आप किसी लोड के अक्रॉस आपको आउटपुट देखना है, या आपके पास कोई एसी सिग्नल है, तो ये आपके पास लोड है, तो आप जानते हो इनपुट वेव फॉर्म अगर आप एसी दे रहे हो ऐसे, तो हाफ वेव में क्या होता है? हाफ वेव में आपको यहां तक एक साइकिल है ना, ये हाफ वेव में आपको फर्स्ट हाफ में फॉर एग्जांपल मिल रहा है आउटपुट यहां तक, सेकंड हाफ में आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर यहां से साइकिल फिर से चालू हो जाएगा. लेकिन इसका साइकिल क्या है? ये रिपीट कहां से कहां तक हो रहा है? रिपीट हो रहा है यहां से लेके यहां तक एक ही साइकिल है. तो अगर इसका एक साइकिल इनपुट का कंप्लीट हो रहा है इतने टाइम में, उतनी ही टाइम में आउटपुट का भी साइकिल कंप्लीट हो रहा है, भले ही यहां पे आउटपुट ना हो. इसका मतलब जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी ना. फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी ना. अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर होता तो आउटपुट में डबल फ्रीक्वेंसी आती, बिकॉज यहां पे भी एक पल्स जनरेट हो जाता. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम 60, तो आउटपुट में भी 60 होना चाहिए. नेक्स्ट, a light ray falls on a glass surface of refractive index √3 at an angle of 60 डिग्री. तो ये आप मान लीजिए एक नॉर्मल है, तो यहां पे लाइट रे आपके पास फॉल कर रही है. लाइट रे फॉल्स ऑन ए ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो मान लीजिए 60 एंगल पे फॉल कर रही है, ठीक है.
तो पहली बात आप देखिए एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज, तो इसका संबंध किसके साथ है? थोड़ा सा आपको आइडिया आना चाहिए, ब्रूस्टर वगैरह, पोलराइजेशन, कुछ आइडिया आ रहा है? आप जानते हो एक चीज, tan ऑफ आईपी, tan ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप देख लीजिए यहाँ पे tan ऑफ आईपी, आपके पास एंगल क्या है? आईपी कितना है इसमें? 60। तो अगर मैं कहेंगे 60 तो किसके बराबर? तो √3 के बराबर आ रहा है, म्यू √3 है ना, तो tan ऑफ 60 √3 के बराबर आ रहा है, सही है? tan ऑफ 60 √3 के बराबर होता है, यस। उसका मतलब ये म्यू के बराबर आ गया इसमें। उसका मतलब आप जानते हो अगर ऐसा ऐसा प्रोसेस होता ना, tan ऑफ आईपी इज इक्वल टू म्यू, उसमें क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे और जो रिफ्रैक्टेड रे होती हैं वो आपस में 90 डिग्री पे होती हैं। तो इससे स्टैंडर्ड रिजल्ट आल्सो यू कैन सॉल्व इट। आप इसमें कुछ ले सकते हो, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ रिफ्रैक्ट हो गया, फिर निकालिए सिनल्स लॉ से। यहाँ पे पहले ये एंगल, वो रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन निकालिए, उसके बाद ये देखिए ये 60 आएगा, ये भी 60 आएगा ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड, ये है रिफ्रैक्टेड। तो आप यहां सिनल्स लॉ लगा सकते हो, राइट? वन गिलास के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, रिफ्लेक्टेड आपके पास है तो आप ये एंगल फाइंड कर सकते हो। जब ये एंगल और ये एंगल पता चल गया तो आप ये एंगल निकाल सकते हो, वो 90 आएगा। और आपको लगाना चाहिए लेकिन tan ऑफ आईपी, टाइम बचाने के लिए, tan ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल टू म्यू। अगर ये सेट्स पे हो रहा है कंडीशन, उसका मतलब क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे और जो रिफ्रैक्टेड रे होती हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो द 90 शुड बी करेक्ट आंसर। इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट x is, तो आपको x बताना है, x कौन है। तो आप जानते हैं यहाँ पे कौन हो रहा है, यहाँ पे E पॉजिटिव का मतलब कौन है? ये पॉजिटिव बीटा डिके हो रहा है, पॉजिटिव बीटा डिके। पॉजिटिव डिके में क्या होता है, आपके पास जो एक न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? आपके पास प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में, प्लस क्या निकलेगा उसके साथ? चार्ज बैलेंस करो, एक पार्टिकल निकलता है, उसको बोलते हैं हम पॉजिट्रॉन, E पॉजिटिव, और साथ में निकलता है आपके पास न्यूट्रिनो, ठीक है जी। तो यही तो वही रिएक्शन कर रहा है ना ये। तो ये न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस से बाहर नहीं आएगा, तो ये दो पार्टिकल जो है ये बाहर आते हैं, इलेक्ट्रॉन फैमिली के पार्टिकल्स। तो जब ये बाहर आ जाएगा तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, अस्तित्व में एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में। उसका मतलब जो आपके पास एटॉमिक नंबर होगा वो घट जाएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गया ना न्यूट्रॉन, तो घट जाएगा। लेकिन मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, नेग्लिजिबल मास है, तो उसका मतलब मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा। तो मास पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एटॉमिक नंबर 1 कम हो गया तो आंसर होना चाहिए, बाकी तो कोई है ही नहीं। देखिए इसमें मास बढ़ रहा है, उसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर वही होगा। नेक्स्ट, इफ द इनिशियल टेंशन ऑन अ स्ट्रिंग इज डबल्ड देन द रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव अराउंड द स्ट्रिंग इज। तो आप जानते हो वेव स्पीड किसके बराबर होती है? √T/μ। तो इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट, बेसिक रिजल्ट है। म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो इसमें मास के साथ वो कुछ नहीं कर रहा है, आप सिर्फ टेंशन डबल कर रहा है। तो अगर पहले स्पीड ये होगी तो उसका मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू बेसिकली √T हो गया, टेंशन के प्रोपोर्शन। तो v1/v2 किसके बराबर होगा? √T1/T2, ठीक है। तो अब आप टेंशन डबल कर रहे हो बाद में, उसका मतलब टेंशन डबल अगर हो गया तो यहाँ पे 2T टेंशन होगा, ऊपर T है, T ने T को मार दिया, आंसर क्या आ गया? v1/v2 इज इक्वल टू 1/√2। So what is the ratio? So ratio should be 1:√2. Ratio of initial and final speeds. Initial and final speeds is 1:√2. So this should be the correct answer. ठीक है? Next. The ratio of the distances traveled by a freely falling body. Freely falling body. U is equal to 0. Acceleration is equal to g. एक्सेस कांस्टेंट। तो आप जानते हो एस nth क्या फॉर्मूला होती है? u प्लस a/2 इंटू 2n-1, राइट? तो यहाँ पे u0 है, a कांस्टेंट है, सो s इज प्रोपोर्शनल टू सिंपली 2n-1, है ना। डिस्टेंस nth सेकंड में जो ये ट्रैवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली होता है बट ये स्ट्रेट लाइन में फॉल कर रहा है, तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड में बताना है रेशियो क्या होगा। तो आप जानते हैं यार फर्स्ट सेकंड में क्या होगा, s फर्स्ट क्या है, किसके प्रोपोर्शनल होगा? 2 into 1, 2-1 तो 1 ही हो जाएगा ना, तो s2 प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 2 2 4 -1 3, उसका मतलब ये 8 नंबर का रेशियो आएगा। सो s1 is to s2 is to s3 has to be equal to whatever s4 भी अगर होगा तो कुछ 1 is to 3 is to 7 is to 9, 1 is to 3 is to 5 is to 7, 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to 9, so on. So this is the correct answer, right? So very common question. Next, when light propagates through a material medium of relative permittivity ER and relative permeability μR,
तो आपको एक बात तो सीधी पता है कि अगर किसी भी मीडियम में आपको देखना है ना कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, वो तो 1/√μ ऑफ द मीडियम इंटू ई ऑफ द मीडियम। अब आप एक चीज जानते हो, म्यू आर क्या होता है, म्यू ऑफ द मीडियम अपॉन म्यू नॉट। तो म्यू किसके बराबर हो गया, वो क्या बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर। सिमिलरली ई किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, राइट। सो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, तो v, this is the velocity of the light in some medium whose permeability and permittivity is this. So इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1 अपॉन म्यू की जगह पे डालूंगा मैं म्यू नॉट म्यू आर, और यहां पे डालूंगा मैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। कोई इसमें कोई मसला है नहीं, सिंपल। सो व्हाट वी डू इज दैट वी आल्सो नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 बाय दिस, राइट। सो इफ यू सी हियर 1 बाय दिस, उसके बाद मैं c लिख सकता हूं। सो ये आ जाएगा आपके पास c अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। सो v is equal to this should be the correct answer. So where is that option? This is the option. That is the velocity is given by in that medium. Next. So let T1 and T2. So यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, T1 T2 यूजुअली हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसने बोला एनर्जी, तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहना चाहिए। सो आप T1 जो है आपके पास, आपको पता है इट्स हाइड्रोजन के लिए -13.6 Z² by m² ऐसे होता है फॉर्मूला, राइट। ये मतलब बिल्कुल बेसिक है ना। तो T अब हाइड्रोजन के लिए तो Z1 हो जाएगा ना, तो T इज बेसिकली T1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली T इज, अब मैं इसको T1 नहीं लिखूंगा, T लिखूंगा सिंपली। सो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by m²। ये एनर्जी है बेसिकली, अब ध्यान देना ये एनर्जी है, मैं एनर्जी को T से डिनोट कर रहा है भाई। सो अब इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 से करेगा जहां n इक्वल टू 2 पे। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की आप कहां पे कर रहे हो जहां, इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि यहां ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, समझ रहे हो। तो इसमें जो इसको एनर्जी होगी, और जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा n इक्वल टू 3 पे, ठीक है। तो आपको क्या बताना, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एटम द रेशियो ऑफ T1 इज टू T2 इज, यानी इसकी जो एनर्जी है उसका और इसका रेशियो, मतलब इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी का रेशियो बताना है। दैट मींस T1 by T2 should be equal to basically what, T1 by T2 should be basically equal to what, let me close the, T1 by T2 should be equal to basically, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहां पे आएगा n2 by n1 का होल स्क्वायर। सो n2 क्या था आपके पास, n2 मतलब सेकंड वाले केस में वहां पे इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में था, तो यहां पे आएगा 3/2 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सो उसका करेंगे हम स्क्वायर, सो 9:4, राइट। सो 9:4 इज द करेक्ट आंसर। सो यू हैव टू बी केयरफुल दैट T is here energy basically we are talking about. T is inversely proportional to n, so T1 by T2 will be n2 by n1 का whole square. Next. When two monochromatic lights of frequency nu and nu by 2 are incident on a photoelectric material, suppose this is photoelectric metal, उसके ऊपर आप दो wavelengths पास कर रहे हो, दो frequencies डाल रहे हो, say for example nu1 and nu2, so their stopping potential becomes Vs by 2 and Vs. So यहाँ पे आपको कैची पॉइंट एक है कि अगर पहले फ्रीक्वेंसी है ना न्यू ज्यादा है कि न्यू बाई 2 ज्यादा है, आधा कर रहा है फ्रीक्वेंसी हाफ कर रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होना चाहिए, आर यू अंडरस्टैंडिंग। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी उसके पास मिल सकती है ना इलेक्ट्रॉन के पास, तो उतना ही ज्यादा उसको रोकना मुश्किल होगा, तो उसका मतलब क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको कम स्टॉपिंग पोटेंशियल लग रहा है, और जिसकी कम फ्रीक्वेंसी है उसको ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लग रहा है, मतलब उल्टा है। हालांकि अगर इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसको करेंगे ना तो आपको कोई ऑप्शन आ सकता है, मगर ये लॉजिकली गलत है सवाल, तो उसका मुझे लगता है बोनस मिलना चाहिए। बट पॉइंट ये है कि अगर आप उसको सॉल्व करने बैठेंगे तो इट विल बी मेनी ऑफ यू वुड हैव डन दिस, मतलब इसी आपने इस इक्वेशन से करा होगा EVS इज इक्वल टू h न्यू माइनस phi स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पहले आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है, उस वक्त जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो Vs by 2 है, तो आपने ऐसे करा होगा।
उसके बाद अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन को, दैट विल बी EVS विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स h न्यू माइनस 2 टाइम्स 5. 5 इज दी आपके पास जो है वर्क फंक्शन. नाउ फॉर सेकंड केस आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs है, तो EVS विल बी इक्वल टू उस टाइम जो फ्रीक्वेंसी है वो h न्यू बाई 2 है, वो आधी है फ्रीक्वेंसी, दैट इज माइनस उस वक्त जो वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा बिकॉज मेटल सेम है. तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी आपकी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी. तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट में कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2h न्यू माइनस h न्यू बाई 2. तो अगर आप 2h न्यू में से एक आधा h न्यू निकालते हो तो बनेगा 3 बाई 2h न्यू, और आप यहां से -2 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये बनेगा आपका -5 इज इक्वल टू 0. समझ रहे हो? तो अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आपके पास आ जाएगा 3/2 h न्यू इज इक्वल टू वर्क, जो ये आपके वर्क फंक्शन होता है बराबर वो होता है h इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो h गोज ऑफ, तो उस हिसाब से आपको लगेगा कि 3/2 न्यू आएगा. बट पॉइंट ये है कि ये लॉजिकली सवाल ही गलत है. नेक्स्ट, a shell of mass m is at rest initially rest. तो आपके पास एक shell of mass है, वो initially at rest है, तो initial velocity इसको 0 है. Explodes into 3 fragments having masses in the ratio of 2:1. तो आप ये टूट जाता है और the fragments having equal masses fly off along mutually perpendicular directions. मतलब ये ऐसे फाइनल सिचुएशन कुछ ऐसा है, एक मास का टुकड़ा इधर जा रहा है, एक मास का टुकड़ा इधर जा रहा है, मान लो पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो डेफिनेटली अगर पहले मोमेंटम 0 है ना, बाद में भी 0 ही होगा ना. मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हो आप, क्योंकि जो एक्सप्लोजिव होता है वो जो आपके इंपल्सिव फोर्स जनरेट करता है, तो उसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं रहेगा उस टाइम जब जस्ट आफ्टर ये फूट जाएगा. तो जो ही मोमेंटम जनरेट करेंगे आगे, तो उसको बैलेंस करने के लिए पीछे जाना पड़ेगा ना उसको, उस पार्टिकल को. लेकिन फिलहाल अगर आप लॉजिकली करेंगे इसको, लेट्स सपोज इसका मास हम मानेंगे, इसका मास कितना होगा पहले पीस का 2 आउट ऑफ 5, सो इट विल बी 2/5 m. इसका भी होगा 2/5 m, क्योंकि इसने बोला है दो टुकड़े तो इक्वल है. तो इसका कितना होगा फिर, इसका मास है m/5, तो इसका तो एक ही हिस्सा है तो m/5, इसके दो हिस्से हैं 2 m/5 है ना. तो अगर आप इसका मोमेंटम लिखना चाहोगे, अब पहले मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम आपके पास 0 है, तो इसका मोमेंटम कितना लिखोगे आप 2/5 m. उसकी कुछ वेलोसिटी मान लो v, they fly off with having mass in the ratio of this if the fragments have equal fly off along the perpendicular directions with speeds v. इसकी भी स्पीड v है, इसकी भी v है. तो अब अगर इसका मोमेंटम लिखा जाएगा तो दिस मास इनटू वेलोसिटी इज v और डायरेक्शन इज i कैप, राइट. सो इसका क्या लिखेंगे आप 2/5 m इनटू वेलोसिटी इनटू j कैप. सो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल. तो इसका क्या होगा हमें नहीं पता, तो इसको हम लिखेंगे कुछ v, लेट अस सपोज इट इज v1, सम v1 वेक्टर, वी डोंट नो व्हाट इज दैट. सो मोमेंटम कंजर्वेशन से हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम. इनिशियली मोमेंटम 0 है इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम है आपके पास, फाइनली जो मोमेंटम है इसका मोमेंटम है 2/5 m i कैप प्लस इसका मोमेंटम है 2/5 m j कैप प्लस इसका मोमेंटम कितना है m/5 into v vector, we don't know that. So this 5 goes off, so that means it will be twice m I cap plus twice m j cap. सॉरी इसके साथ v भी लिखना है, वेलोसिटी साथ साथ v भी लिखेंगे आप, तो क्योंकि इनके पास स्पीड सेम थी ना v भी, और इसके उसको ऊपर हमने v1 बोला था. सो आई कैन टेक इट कॉमन, v को मैं कॉमन ले सकता हूं यहां से, will be इक्वल टू, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो इट विल बी माइनस टाइम्स m into v1 vector, right जी. so m goes off, so that means v1 vector किसके बराबर आ रहा है हमें, so v1 vector जो आ रहा है बराबर वो आ रहा है माइनस टाइम्स ऑफ 2v i कैप माइनस टाइम्स ऑफ 2v j कैप, राइट. ये माइनस उधर जाएगा, mm कैंसिल हो गया ना. तो आपको निकालना क्या है बेसिकली, आपको इस v1 का मैग्नीट्यूड चाहिए. तो v1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, 2 टाइम्स करेंगे इसको क्योंकि दो बार है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो आपको आंसर जो मिलेगा 2 2 और 4, ये आपको आएगा 2√2v, 2√2v, राइट. दिस इज द आंसर. बहुत आसान है. सो a body of mass 60 gram experiences a gravitational force of 3 Newton. When placed at a particular point, the magnitude of the gravitational field intensity. Gravitational field intensity क्या होता है? Actually acceleration due to gravity होता है, but आप ऐसे समझिए, आप लिखते हो force बराबर q into e, right? लिखते हो ना ऐसे. So force बराबर charge times electric field intensity.
तो आप ऐसे लिख सकते हो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर चार्ज के बदले में आएगा मास, और कुछ हम खुद ही बना सकते हैं इंटेंसिटी का नाम सपोज आई, राइट जी। तो अ बॉडी ऑफ 60 ग्राम, आपके पास जो मास है वो 60 ग्राम है, वो क्या करती है, एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास 3 न्यूटन है, इनटू करेंगे हम यही इंटेंसिटी, इसको बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास आई किसके बराबर आएगा, सो आई इज गोइंग टू बी इक्वल टू 300/6, राइट, 300/6। सो हाउ मच इज दैट, 6 5 30, so I is going to be equal to 50 न्यूटन पर केजी, बिकॉज आपको यूनिट से समझ में आ रहा है, न्यूटन पर केजी, राइट। Now this question given below are the two statements. Biot-Savart's law gives us the expression for the magnetic field strength of an infinitesimally current element ideal. Current element is this of a current carrying conductor only. So Biot-Savart law क्या है basically? Biot-Savart law तो कहता ही है कि अगर आपके पास एक करंट एलिमेंट है आइडियल, उसकी वजह से r डिस्टेंस पे आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो आप जानते हैं छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है ना, μ0/4π, so it is ideal cross r vector upon r cube. So this is the law. So obviously it gives differential magnetic field, differential small magnetic field due to small current element, right? So current element की वजह से, तो ये बोल रहा है कि उससे बायट-सावर्ट लॉ से हम ये कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल सही बोला है। उसके बाद बायट-सावर्ट लॉ सेकंड स्टेटमेंट इज एनालॉगस टू कूलम्स लॉ, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर चार्ज क्यू। ये सही है, ये इतना तो सही है, बिकॉज हर इक्वेशन के लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, उसकी एक कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होती है मैग्नेटिज्म में, तो ये एनालॉग्स माना जाता है किसका, कूलम्स लॉ का। यहां तक सही है, विद द फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स आइडियल। तो इसने स्केलर सोर्स किसको कहा है, आइडियल को, while later being produced by a vector source Q। मतलब जो ये आइडियल वेक्टर सोर्स होता है, आइडियल एक वेक्टर क्वांटिटी है, और चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ये चार्ज को बोल रहा है वेक्टर सोर्स, और स्केलर आइडियल को स्केलर सोर्स बोल रहा है, उसका मतलब यहां पे गड़बड़ है। तो इस लाइन में गड़बड़ है, उसका मतलब इस स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। So in the light above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. So which should be the correct answer? So this statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. So this should be the correct answer. Statement 1 correct है, ये वाला statement correct है, और दूसरा statement जो हमारा वो incorrect है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये ideal और Q इस्तेमाल हुआ है, जिनको नाम उल्टा दे रहा है, vector point of view. Two hollow conducting spheres of radius r1 and r2. R1 is it's much greater than R2, right? Have equal charges. The potential would be. तो आपको करना क्या है, आपके पास टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स है, जो आपके पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है आपके पास R1, और दूसरा स्फीयर जो है उसकी रेडियस जो है वो R2 है, और R1 बड़ा है R2 से, और उसका मतलब ये बिग स्फीयर है और स्मॉल है। अभी क्या बोल रहा है कि दी पोटेंशियल वुड बी, आपने दोनों को क्या दिया है, टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस हैव इक्वल चार्जेस, तो चार्ज सेम दिया है, इसको भी चार्ज क्यू दिया है, इसको भी क्यू दिया है। तो अगर आपने चार्ज सेम दिया है तो इसका पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, सो V1 पोटेंशियल विल बी इक्वल टू KQ/R1, यू नो दैट, एंड सेकंड विल बी इक्वल टू V2 इज इक्वल टू KQ/R2, बिकॉज़ K इज कांस्टेंट एंड Q इज सेम, सो दैट मींस V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हियर। तो उसका मतलब जिसकी रेडियस कम होगी उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, है ना। सो द पोटेंशियल विल बी मोर ऑन स्मॉल स्फीयर, दैट्स द करेक्ट आंसर, बिकॉज़ रेडियस कम, स्मॉल स्फीयर, उसका पोटेंशियल ज्यादा। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को क्या होगा, तो आप जानते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है रो, दैट इज इक्वल टू m/नीट। कई बार बोल चुका हूं मैं, m/नीट, इसको याद भी रख सकते हैं आप। तो आपको यहां पे क्या चेक करना है, यू हैव टू चेक बेसिकली दैट इफ यू सी द m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e is the charge of electron, and what is n is the number density of free electrons, है ना। तो ये मेटल में एप्रिशिएबली चेंज नहीं करता, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने पे n पे खासा इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में गैप जो होता है वो बहुत कम होता है, तो ऑलरेडी ये फ्री हो गए होते हैं।
दैट मीन्स रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाउ हियर। अब टाउ क्या होता है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका मतलब जो कोलिजन होंगे वो फास्टली होंगे, उसका मतलब जो टाउ होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सो अगर टाउ घट गया तो रो क्या हो जाएगा? रो बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो रो बढ़ने से रेजिस्टेंस आपकी बढ़ जाएगी, प्रोवाइडेड जो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उनको हम फिक्स मानते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब कंडक्टर्स में क्या होगा? वेट ए सेकंड, थोड़ा सा पानी मिलेगा सर? सब यहाँ साथ में नाश्ता है, ठीक है फाइन। सो यहां पे जो रो है बेटा, आप देखिए यहां पे जो टाउ अगर घटेगा तो रो और रो आपका बढ़ जाएगा। तो उसका मतलब ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? कंडक्टर्स की, और कंडक्टर्स। अच्छा, अब अगर हम देखेंगे कि इनके लिए सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होता है। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि जो यही अगर हम फॉर्मूला सेमीकंडक्टर्स के लिए देखेंगे, रो इज इक्वल टू एम अपॉन, यही फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा उसमें दो फैक्टर इंपैक्टफुल होते हैं, बिकॉज उसमें जो बैंड गैप होता है ना, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है सिलिकॉन में ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1.1, तो रूम टेम्परेचर पे इनिशियल जब आप टेम्परेचर देते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते सारे, बहुत कम इलेक्ट्रॉन, बहुत फ्रैक्शन कम होती है इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्री हो जाते हैं। उसका मतलब जो एन है ये भी वेरी करता है फॉर सेमीकंडक्टर्स, राइट। तो आपको एक एप्रिशिएबल टेम्परेचर पहले देना पड़ेगा, तब जाके ये एन फ्री हो जाएगा। उसका मतलब इनिशियली क्या होगा? इनिशियली एन विल बी डोमिनेटिंग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले होंगे। उसका मतलब अगर एन इनिशियली डोमिनेटिंग है, टाउ उतना डोमिनेटिंग नहीं है अभी, उसका मतलब इट विल डिपेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सो रो विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। बट टेम्परेचर बढ़ने में क्या होगा? अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एन मतलब ज्यादा फ्री हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, उसका मतलब एन बढ़ जाएगा। सो एन जब बढ़ जाएगा तो रो को क्या होगा? रो घट जाएगा। उसका मतलब सेमीकंडक्टर्स में रिलेशन थोड़ा उल्टा है कि कंडक्टर्स के लिए देखेंगे इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर्स, जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करती हैं, आपने भी देखा। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या करती हैं? सेमीकंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ने पे एन बढ़ने के कारण रो घटता है तो रेजिस्टेंस घटती है। तो इसलिए हम कभी-कभी एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो? टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पे और रेजिस्टेंस जो है वो आपकी घट रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। सो Nasser will be shortly joining us. Many of the teachers were interested to have live interaction, but we couldn't carry on everyone. So Nasser is here. He will continue from here. Thank you very much. Thank you, sir. Hey guys, Assalamu alaikum warahmatullah. So I'll be continuing from question number 26. Okay, question number 26. Let me read out the question. A biconvex lens has radii of curvature 20 cm each. If the refractive index of the material of the lens is 1.5, the power of the lens is. So we have a biconvex lens. Let's call this surface 1 and let's call this surface 2. सरफेस 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वो यहां पर कहीं होगा C1। सरफेस 2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होगा, I'll call that C2। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 1 जो है वो ये बन जाएगा R1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 2 जो होगा वो ये बन जाएगा R2। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज कि R1 जो है वो आपको साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव लेना है, और R2 जो है वो आपको साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव लेना है। सो अब जरा डेटा लिखते हैं। R1 और R2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, दोनों 20 सेंटीमीटर्स हैं, लेकिन R1 के लिए we'll use प्लस 20 सेंटीमीटर्स और R2 के लिए we'll use माइनस 20 सेंटीमीटर्स। ओके, माइनस 20 सेंटीमीटर्स। सो ये तो R1 और R2 का हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज 1.5 या फिर 3/2।
ओके 3/2। अब फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला जरा याद करें। 1/f इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ, जो पावर होता है बेसिकली, इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। सो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यूज। म्यू जो है दैट इज 3/2 माइनस 1, और R1 और R2 जो है, R1 इज +20, रिमेंबर ये सेंटीमीटर्स में है, ओके सेंटीमीटर, हमें इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। माइनस 1/r2 जो है वो -20 के बराबर है। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर भी 10⁻², यहां पर भी 10⁻², उसे मैं कॉमन लेता हूं। सो 1 डिवाइडेड बाय 10⁻²। ओके, नाउ दिस इज टू बी सॉल्व। 3/2 माइनस 1 इज जस्ट 1/2, 1/2, so power p is equal to 1/2। ये बन जाएगा माइनस माइनस इज प्लस, तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 20, और इसको मैं ऊपर लूंगा, ये बन जाएगा 100। so 2 and 2 will cancel out, 0 and 0 will cancel out, 2 into 5, so power is equal to 5। हमने मीटर्स में यूज किया, एसआई सिस्टम में यूज किया, तो पावर का जो यूनिट होगा वो भी एसआई सिस्टम वाला होगा, विच इज द डायोप्टर। नोट कर लें, पॉजिटिव आ रहा है, बाय द वे कन्वेक्स लेंस के लिए तो पॉजिटिव ही होता है। सो +5 डायोप्टर्स, ओके +5 डायोप्टर्स। लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन इज वेरी सिंपल। द डायमेंशंस m1 l1t -2 a -2, रिमेंबर a is the current, belongs to, ये जनरल है, बड़ा आसान है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इसका है, ओके मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट वन। If a soap bubble expands, the pressure inside the bubble, expand होने का मतलब radius जो है वो increase हो रहा है। So if we have a soap bubble here of radius r, हमें पता है कि excess pressure जो है delta p, which is p inside minus p outside। अंदर वाला प्रेशर p से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो p0 के बराबर है। अब ये सोप बबल के केस में इज 4t डिवाइडेड बाय r। T इज द सरफेस टेंशन, ओके T इज द सरफेस टेंशन। अगर आपने S यूज किया तो फाइन, S इज द सरफेस टेंशन। तो P प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज इक्वल 4t डिवाइडेड बाय r प्लस P0। अब P0 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये तो फिक्स्ड है, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है। 4t डिवाइडेड बाय r अब है। अब r को आप क्या कर रहे हैं, बबल जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड होने का मतलब रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है। रेडियस इंक्रीज होगा तो ये टर्म जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो प्रेशर जो है अंदर डिक्रीज हो जाएगा, ओके ये डिक्रीज होगा, ये तो फिक्स है, तो ओवरऑल डिक्रीज ही होगा, तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। 28 का ऑप्शन 3 हमारी सीरीज में ऑप्शन 3 है, आप अपनी सीरीज में देख लें कि क्या है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। A long solenoid of radius r equal to 1 millimeter, so यहां पर मैं लिखता हूं r is equal to 1 millimeter, which is 10 to the power minus 3 meters, okay 10 to the power minus 3, has 100 turns per millimeter। This is important, has so number of turns per unit length जो है, per unit length 100 turns per millimeter, so 100 per millimeter है, तो इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट करना है। दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -3 मीटर, मिलीमीटर टू मीटर। 10 टू द पावर -3 ऊपर आएगा तो 10 टू द पावर +3 बन जाएगा, वहां पर 10 टू द पावर 2 पहले से ही है, सो दिस इज 10 टू द पावर 5 पर मीटर, ओके पर मीटर। नाउ ये बात यहां पर इंपॉर्टेंट है, रेस्ट इट्स वेरी सिंपल। करंट जो है वो 1 एम्पियर के बराबर है, ओके करंट जो है वो 1 एम्पियर के बराबर है। ना मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंपल फॉर्मूला आपके पास है सोलेनॉइड के लिए, μ0 ni। लॉन्ग पहले मेंशन्ड है लॉन्ग सोलेनॉइड, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एन आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड μ0 ni, या सेंटर पे होता है ये μ0 ni। सो μ0 का वैल्यू जो है वो तो हमें पता ही है, 4 पाई × 10 टू द पावर -7 इंटू n जो है वो 10 टू द पावर 5 है, 10 टू द पावर 5, और I जो है वो 1 के बराबर है। सब कुछ SI सिस्टम में हमने ले लिया, ओके μ0 SI सिस्टम में है, n हमने कन्वर्ट कर दिया SI सिस्टम में, करंट 1 एम्पियर तो वो भी SI सिस्टम में है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो भी वैल्यू आएगा वो SI सिस्टम वाला ही वैल्यू आएगा।
नाउ 4 पाई जो है दैट इज 12.56 into 10 to the power minus 2 Tesla. 12.56 into 10 to the power minus 2 Tesla. 12.56 into 10 to the power minus 2 Tesla. Color red color use. Red. Okay. Fine. So 12.56 into 10 to the power minus 2 Tesla. Now, sir, I want you to remember something here. जो आगे एक क्वेश्चन में यूज होगा. 4 पाई का वैल्यू जो है वो 12.56 है. ये आगे चल के हमें यूज करना है. ओके, दिस इज वेरी स्मार्ट. पेपर सेट करने वाले बड़े स्मार्टली इसे सेट किया है. 4 पाई और 12.56 सेम है. ये आगे एक क्वेश्चन में हमारा यूज होगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. The displacement time graph of two moving particles makes angles of 30 degree and 45 degree with the x-axis as shown in figure. The ratio of their respective velocities is displacement time graph है. Displacement time graph है. तो velocity जो है that is simply slope of the graph और slope जो है that is tan of theta. Okay, tan of theta. अब नोट कर लें पहले 30 वाला मेंशन है, बाद में 45 वाला मेंशन है. तो रेशियो जब आप निकालेंगे उसमें 30 वाला ऊपर रखना है और 45 वाले नीचे रखना है. तो 30 वाले जो है वो ये वाला है, इसे मैं 1 कहूंगा और 40 नहीं ये 45 वाला है. 30 वाला जो है what happened? Arshad? Okay, let's continue. मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं. सो वी हैव डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. एक ग्राफ जो है उसका एंगल 45 डिग्रीज है, ये एंगल 45 डिग्री के बराबर है. और दूसरा ग्राफ जो हमारे पास है, दूसरा ग्राफ यहां पर है, इसका एंगल जो है वो 30 डिग्री के बराबर है. रिमेंबर क्वेश्चन में 30 डिग्री वाला पहले मेंशन्ड है, तो 30 डिग्री वाले को मैं 1 कहूंगा और 45 डिग्री वाले को मैं 2 कहूंगा. हमें वेलोसिटीज का रेशियो बताना है. द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज इज, सो v1 डिवाइडेड बाय v2 हमें बताना है. v1 डिवाइडेड बाय v2 इज इक्वल. नाउ रिमेंबर वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ द कर्व. सो tan ऑफ स्लोप होता है tan ऑफ थीटा. 1 का 30 डिग्रीज है, tan ऑफ 30 डिवाइडेड बाय tan ऑफ 45 डिग्रीज. tan ऑफ 45 तो 1 के बराबर है, tan ऑफ 30 होता है 1 डिवाइडेड बाय √3. सो v1 इज टू v2 जो है दैट इज इक्वल टू 1 इज टू √3. ओके, दैट इज इक्वल टू 1 इज टू √3. ऑप्शन 2 मेरे वाले में है, आप चेक कर लें. 1 इज टू √3 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. Let's move on to the next one. Okay, in the given circuits A, B and C, the potential drop across two PN junctions are equal in. So आप कुछ potential difference provide कर रहे हैं with the help of a battery. आपको बताना है कि इन दो जंक्शन डायोड्स में पोटेंशियल ड्रॉप कहां पर सेम होगा. ओके, पोटेंशियल ड्रॉप कहां पर सेम होगा. अब पहले हम ये चेक कर लेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग कहां पर है, रिवर्स बायसिंग कहां पर है. यहां पर ये हायर पोटेंशियल साइड है, लेट्स सिंपली राइट x प्लस, और ये वाला लोअर पोटेंशियल साइड है. तो ये यहां पर पॉजिटिव है, ये यहां पर नेगेटिव है. हायर पोटेंशियल बीच में ऑब्वियसली इसके कंपैरिजन में लोअर होगा और यहां पर उससे भी लोअर होगा. तो लेट्स सपोज ये 10 वोल्ट के बराबर है, तो यहां पर 10 होगा, यहां 10 और 0, यहां से 0, यहां पर 10 और 0 के बीच में कहीं होगा. सो ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है, ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है, तो दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो सेम होगा. सिलिकॉन में जो फॉरवर्ड बायसिंग में होता है 0.7 या 1.1 वोल्ट्स. तो फॉरवर्ड बायसिंग दोनों है, तो इसलिए दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो सेम होगा. एग्जैक्टली सेम चीज आप इसमें नोट कर लें. यहां से नेगेटिव है, यहां से पॉजिटिव है. बैटरी का ये नेगेटिव साइड है, बैटरी का ये पॉजिटिव साइड है. तो N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड. यहां पर P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो ये भी फॉरवर्ड बायस्ड. तो दोनों फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप दोनों में सेम होगा. इसका नोट कर लें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बैटरी का पॉजिटिव इस साइड से, बैटरी का नेगेटिव इस साइड से. तो ये तो फॉरवर्ड बायसिंग आएगा, लेकिन इसका P नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो रिवर्स बायस्ड है. एक फॉरवर्ड बायस्ड एक रिवर्स बायस्ड, दैट मींस इनका पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं होगा. अगर दोनों रिवर्स बायस्ड हो तब हम देख लेते, लेकिन एक फॉरवर्ड है एक रिवर्स है.
तो ए और सी का पोटेंशियल ड्रॉप दोनों डायोड्स में जो है वो सेम है, बोथ सर्किट्स ए एंड सी, बोथ सर्किट्स ए एंड सी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके. In a Young's double slit experiment, a student observes 8 fringes in a certain segment of screen when a monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used. If the wavelength of light is changed to 400 nanometers, then the number of fringes he would observe is the same in the same region of the screen is. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में याद करें, आपके पास कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, a sin theta is equal to n lambda, n is the number of the fringe, which means n is equal to a sin theta divided by lambda. Okay, divided by lambda. अब यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो है that is inversely proportional to lambda. Okay, inversely proportional to lambda. So n is inversely proportional to lambda, meaning we can write n2 divided by n1 is equal to lambda 1 divided by lambda 2. रेशियो मैं ले रहा हूं. अब lambda 1 जो है वो पहला वाला, lambda 1 is 600 nanometers और lambda 2 जो है that is 400 nanometers. So this is 600 divided by 400. यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल आउट होगा, दो जीरोस, 2 into 2, 2 into 3, so 3 divided by 2. So n2 is equal to 3 divided by 2 into n1. अब originally number of fringes जो है वो 8 है. So this is 3 by 2 into 8. So 2 into 4, 4 into 3 is 12. So अब जो number of fringes होंगी वो 12 होंगी. Option number 2. Okay, option number 2. Let's move on to the next one. A spherical ball is dropped, this is important, drop करने का मतलब initial velocity is 0, okay, initial velocity is 0, is dropped in a long column of highly viscous liquid. Again, viscous liquid is important, okay, viscosity है, okay, viscosity है. The curve for in the graph shown, which represents the speed of the ball v as a function of time t is. देखिए आपके पास एक कॉलम है, लंबा कॉलम है, लॉन्ग वन, यू हैव हाईली विस्कस फ्लूइड देयर. आप बॉल को यहां पर ड्रॉप कर रहे हैं. ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 के बराबर है. ओके, इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ए और बी के केस में, तो सी और डी तो पहले रिजेक्ट हो जाएंगे. अब ए और बी के केस में आपने चूज करना है. अब अगर विस्कोसिटी आपके जहन में हो, जब ये नीचे आता है तो इसकी स्पीड इंक्रीज होती है, लेकिन साथ साथ विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होता है. और आगे चल के एक टाइम ऐसा होता है कि विस्कस फोर्स प्लस बायोंट फोर्स और mg जो है वो सेम बन जाते हैं और नेट फोर्स 0 बन जाता है. नेट फोर्स 0 बन जाएगा तो आगे वेलोसिटी फिर कांस्टेंट रहती है, ओके, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं. तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर इंक्रीज होगी, लेकिन आगे चल के फिर कहीं वो कांस्टेंट भी रहेगी. सो फर्स्ट 0, देन इंक्रीजेस, देन आफ्टर सम टाइम रिमेन्स कांस्टेंट. अब ए वाला जो वो तो लीनियरली इंक्रीज दिखा रहा है, तो वहां पर कांस्टेंट तो है नहीं. बी वाला जो है वो यहां पर फिर कांस्टेंट दिखा रहा है, तो कर्व बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, कर्व बी. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. 34. An electric lift of a maximum load of 2000 kg, lift plus passengers, is moving up with a constant speed of 1.5 meter per second. Okay, constant speed, this is important. 1.5 meter per second. The frictional force opposing the motion is 3000 newtons. The minimum power delivered by the motor to the lift in watts is. So आपके पास यहां पर ये लिफ्ट है, ये ऊपर जा रहा है with some velocity, constant velocity. इस पे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, 2000 kg है, तो वो 2000 into g बन जाएगा, वो और एक 0, so 20,000. और फिर जाके फ्रिक्शनल फोर्स जो है, जो साइड्स में होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स नीचे होगा, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, रिलेटिव मोशन. 3000 है, 3000 न्यूटन्स. और ऊपर जो कॉर्ड से टेंशन फोर्स होगा, जो मोटर के साथ कनेक्टेड है, जो इसे लिफ्ट को ऊपर पुल कर रहा है. नाउ लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मींस नेट फोर्स मस्ट बी 0. नेट फोर्स 0 होने के लिए टोटल अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टोटल डाउनवर्ड फोर्स. टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है? 20,000 प्लस 3,000 इज 20,300 बन जाएगा.
तो टेंशन जो होगा दैट विल बी 23,000 विच आर दैट एज 23 into 10 to the power 3. तो ये आपको मिल गया नेट फोर्स 0, तो T मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू. ओके, सम ऑफ दीज टू. फाइन. नाउ जो पावर होगा, जो मोटर यहां से खींच रहा है उसका पावर जो होगा, पावर के लिए सिंपल सी इक्वेशन है F इंटू वी. नोट कर लें, लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है, उसमें जो फोर्स है मोटर के कॉर्ड की वजह से जो कनेक्टेड है वो भी ऊपर है, वेलोसिटी भी ऊपर है, तो वन डिमेंशनल केस बन गया. तो सिंपली F इंटू वी. F के बदले में हमारे पास T है, तो T इंटू वी. T इंटू वी, T जो है वो है 23 इंटू 10 टू द पावर 3, और V जो है दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड. ये न्यूटन्स में है सभी फोर्सेस, ये भी न्यूटन्स में. तो फोर्स हमने न्यूटन्स में लिया. वेलोसिटी जो है वो 1.5 मीटर पर सेकंड है, जिसे मैं 3/2 लिखूंगा, तो वो भी न्यूटन्स में है. ओके, वो भी एसआई सिस्टम में है, मीटर पर सेकंड. तो जो हमें मिलेगा वो भी एसआई सिस्टम में होगा. ओके, जो हमें मिलेगा वो भी एसआई सिस्टम में होगा. नाउ दिस कम्स आउट टू बी 34.5 into 10 to the power 3 watt. Okay, 34.5 into 10 to the power 3 watt, which is 34500 watt. 34500 watt. 34500 watt. Option 1. Okay, so simple. ये आपको पता होना चाहिए नेट फोर्स 0 है. That's it. पावर की इक्वेशन पता होनी चाहिए. Let's move on to the next one. 35. The graph which shows the variation of the de Broglie wavelength lambda of a particle and its associated momentum. It can't go simpler than this. It can't go simpler than this. Remember, lambda is equal to h divided by p. So lambda is inversely proportional to p. Inversely proportional to p का ये standard curve. Okay, so let's move on to the next one. 36. Now this is section B. So यहाँ पर कुछ optional questions आपने शायद नहीं भी किए होंगे कुछ questions. A big circular coil of 1000 turns and average radius 10 meter is rotating about its horizontal diameter. About its horizontal diameter is important. At 2 radian per. चलिए, number of turns जो दिए गए हैं वो 1000 है. Radius जो है वो 10 meters है. फिर जाके ओमेगा जो है, एंगल ऑफ वेलोसिटी जो है वो 2 rad per second है. हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अलोंग ये रोटेट कर रहा है. ओके, देन इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट जो है दैट इज 2 into 10 to the power -5 टेस्ला. एंड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल R जो है दिस इज 12.56 ohms. 12.56 से आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए. मैंने ऊपर बोला था एक क्वेश्चन में. ओके, नाउ ये लूप है, ये रोटेट कर रहा है अबाउट हॉरिजॉन्टल डायमीटर. ये ऐसे रोटेट कर रहा है अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल डायमीटर विद सम एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा. सो अगर आप ये देखेंगे, ये यहां पर लूप ऐसे हैं, ये रोटेट कर रहा है अबाउट द हॉरिजॉन्टल डायमीटर. सो इट्स रोटेटिंग दिस वे, इज रोटेटिंग दिस वे. अब ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो तो ऐसे होगा ना. नोट कर लें, ये वाला कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड का है दैट इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप. तो उसके वजह से फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी. जब ये रोटेट करके ऐसे बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी ऐसा है, ये अभी भी आप देखें कि ये पैरेलल है इसके, तो अभी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फ्लक्स को कंट्रीब्यूशन नहीं देगा. जब ये फर्दर रोटेट कर लेगा ऐसे, तब भी आप देखें कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये इसके पैरेलल ही है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा. तो जब ये फर्दर रोटेट ऐसे होगा, अभी भी पैरेलल है, अभी भी पैरेलल है, अभी भी पैरेलल है. तो जब ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अबाउट रोटेट कर लेगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, उसकी कोई लाइन इसको क्रॉस नहीं कर लेगी, तो उसके वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा. सो दैट विल नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू ईएमएफ. लेकिन जब ये रोटेट कर लेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो इसके थ्रू जाएगा, तो वो फ्लक्स को कंट्रीब्यूट कर लेगा और उसके वजह से ईएमएफ आएगा, उसके वजह से फिर इंड्यूस्ड करंट आ जाएगी. ओके, नाउ
अब यहां पर रोटेटिंग कॉइल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आपको यह पता होना चाहिए कि ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होता है वो होता है एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो E0 से मैं उसे रिप्रेजेंट कर लूंगा एम्पलीट्यूड को. दिस इज एन बी ए ओमेगा. ओके, एन बी ए ओमेगा. अब करंट का एम्पलीट्यूड जो होगा I0 से मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा, दैट विल बी ईएमएफ का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. करंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल ईएमएफ एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. अब E0 के बदले में एन बी ए ओमेगा, एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1000 है, 10 टू द पावर 3 मैं लिखता हूं. B जो है वो कहा गया है, BV हमें लेना है, रिमेंबर उसी के वजह से फ्लक्स है 2 into 10 to the power -5, 2 into 10 to the power -5, सब कुछ ऐसा सिस्टम में है. फिर जाके A जो है, A is pi r square. ओके, pi r square. So pi into r square, r is 10, तो r square बन जाएगा 10 square. ये भी मीटर्स में है, तो ये भी ऐसा सिस्टम में है. फिर जाके ओमेगा, ओमेगा जो है दैट इज 2. ओमेगा जो है वो 2 के बराबर है, यहीं पर लिखते हैं वो 2 के बराबर है. डिवाइडेड बाय आर. आर क्या है 12.56, 12.5. वो भी ओम्स में है, तो वो भी ऐसे सिस्टम में है. अब देखें 2 into 2 is 4 और ये 4 पाई. रिमेंबर 4 पाई is 12.56. ओके, सो 2 into 2 is 4, 4 into pi is 12.6. वो कैंसिल आउट होगा, तो बचा क्या 10 to the power 3 बच गया, 10 to the power 2 बच गया, 10 to the power -5 बच गया, 10 to the power 3, 10 to the power 2, वो 10 to the power 5, 10 to the power 5 into 10 to the power -5, वो सिंपली 1 के बराबर. सो करंट एम्पलीट्यूड जो है वो 1 एम्पियर है. रिमेंबर सब कुछ ऐसा सिस्टम में था, तो 1 एम्पियर ऑप्शन 1. ओके, ऑप्शन 1. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगेन वेरी सिंपल डायोड वाला सवाल है. अगेन इट कांट बी इजियर देन दिस. 2 point charges -q and +q are placed at a distance L as shown in figure. So this is simply a dipole. -q +q separated by some distance, so it's an electric dipole. The magnitude of electric field intensity at a distance r, तो यहां से at a distance r, some point is here, at a distance r, which is very large in comparison to L. R is very large in comparison to L. इसको आप थ्योरी में बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल. इसको हम थ्योरी में बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल. और शॉर्ट डाइपोल के केस में चाहे एक्सियल लाइन वाला फील्ड हो या इक्वेटोरियल लाइन वाला फील्ड हो या किसी और भी पॉइंट का फील्ड हो, फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस. Okay, field is inversely proportional to cube of the distance. Field is inversely proportional to cube of the distance. अब इसने small r के बदले में capital R यूज किया है, so is inversely proportional to cube of the distance. So field varies as 1 by r cube. Field varies as 1 by r cube. So option 4. So let's move on to the next one. A series LCR circuit with inductance 10 Henry. So let's write it down. L is equal to 10 Henry. SI सिस्टम में C कैपेसिटेंस इज इक्वल 10 माइक्रोफैरड. कैपेसिटेंस इज 10 माइक्रो है, तो 10 टू द पावर -6 फैरड बन जाएगा, तो ये भी SI सिस्टम में आ गया. रेजिस्टेंस 50 ohms. R is equal to 50 ohms is connected across a voltage source V is equal to 200 sine of 100t. तो ये वोल्टेज आप सप्लाई करें, ईएमएफ आप सप्लाई करें. If the resonant frequency of the LCR circuit is mu0 and the frequency of the AC source is mu, then फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी F या mu इसने कहा गया है. ना हमें बताना है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी और हमें बताना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स किसके बराबर है. पहले कौन मेंशन है? पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मेंशन है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. mu0, रिमेंबर दैट इज ओमेगा 0 डिवाइडेड बाय 2 पाई. Omega, you must know this, is 2 pi f. So f is equal to omega divided by 2 pi. So यहाँ पर omega 0 divided. This is resonant frequency, okay? Resonant frequency. अब omega 0 जो है वो यहाँ से आपको मिल रहा है वो अच्छा नहीं ये omega 0 है, resonant frequency है. So this is 1 by 2 pi. Resonant frequency आपको पता होना चाहिए is 1 by root of LC.
ओके, तो L और C के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, दैट्स इट। सो दिस इज 1/2 पाई इंटू 1/√ ऑफ L जो है वो 10 के बराबर और C जो है वो 10 × 10⁻⁻6 है। ये बन जाएगा 10 × 10 is 10⁻², 10⁻⁻6 × 10⁻² is 10⁻⁴, रूट ले ले वो बन जाएगा 10⁻², 10⁻² नीचे है, ऊपर ले ले वो बन जाएगा 10⁻+2 which is 100, 100 divided by 2 is 50, 50 divided by pi। so resonant frequency जो है वो 50 divided by pi के बराबर है, ओके, 50 divided by pi। तो 50 डिवाइडेड बाय पाई यहां पर भी है, 50 डिवाइड बाय पाई यहां पर भी है, तो दो ऑप्शंस है, दैट मीनिंग कि हमें दूसरा वाला भी निकालना पड़ेगा। दूसरा वाला क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, वो हमें इस इक्वेशन से पता चल जाएगी। रिमेंबर, एंगल के अंदर टाइम का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नॉट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो ओमेगा जो है वो 100 के बराबर है। सो इट इज गिवन ओमेगा, यहां पर मैं लिखता हूं ओमेगा इज इक्वल टू 100। तो फ्रीक्वेंसी विच इज ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 पाई, 100/2 इज 50, 50 डिवाइडेड बाय पाई, 50 डिवाइडेड बाय पाई। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी 50 डिवाइडेड बाय पाई है, तो और सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो भी 50 डिवाइडेड बाय पाई है, तो दोनों 50 डिवाइडेड बाय पाई के बराबर है, ओके, दोनों 50 डिवाइडेड बाय पाई के बराबर। Let's move on to the next one. Okay, the volume occupied by the molecules contained in 4.5 kg water, kg ध्यान रखना है, at STP, if the intermolecular forces vanish, so intermolecular forces हमने consider नहीं करने, so it's like ideal gas। अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वैनिश कर लेंगे तो H2O वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो गैसियस स्टेट में होगा और आइडियल गैस बन जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो है, मीनिंग आप PV = nRT फिर यूज कर पाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर, ओके, हमें क्या बताना है? द वॉल्यूम ऑक्युपाइड, ओके, वॉल्यूम ऑक्युपाइड हमें बताना है। अब उसके लिए PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT, या फिर PV इज इक्वल n के बदले में आप लिख सकते हैं मास ऑफ द सैंपल, जो टोटल मास होगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट, जो भी होगा, वाटर है इस केस में, मोलर मास ऑफ वाटर, इनटू R इनटू T। अब STP लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो प्रेशर जो है वो हम 1 एटमॉस्फेयर लेंगे, दैट इज नॉट द SS सिस्टम यूनिट, 1.1 × 10⁵ पास्कल्स, 1.1 × 10⁵ पास्कल्स इनटू वॉल्यूम, तो हमें निकालना है, ये ऐसे रखते हैं, इज इक्वल टू मास। अच्छा, पहले मैं मोलर मास लिखता हूं नीचे। वाटर का मोलर मास जो है वो किसके बराबर है? H2O है, H का 2, वाटर ऑक्सीजन का 16, सो वो बन जाएगा 18। ये है 18 ग्राम्स पर मोल, इस बात का ख्याल रखना है, 18 ग्राम्स पर मोल, एक मोल का मास जो 18 ग्राम्स के बराबर है, तो नीचे जो मोलर मास है वो 18 ग्राम्स में है, तो ऊपर जो सैंपल का मास है वो भी हम ग्राम्स में लेंगे, लेकिन वो दिया गया है केजीज में, तो उसे कन्वर्ट करके लिखेंगे। सो हम लिखेंगे 4.5 केजी है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, वो ग्राम बन जाएगा, केजी टू ग्राम। देन R जो है दैट इज 8.31 इनटू टेम्परेचर जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन्स, ओके, 273 केल्विन्स। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां पर है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, दैट इज 5.67 क्यूबिक मीटर, 5.67 क्यूब, विच इज 5.6 मीटर क्यूब, ओके। सो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां पर वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 40। A Wheatstone bridge is used to determine the value of unknown resistance X by adjusting a variable resistance Y as shown in the figure. For the most precise measurement of X, the resistances P and Q, for options should be very large and unequal, do not play any significant role, should be approximately equal to 2X, should be approximately equal and small, should be approximately equal and small. Now, Wheatstone bridge के बारे में, या इसका जो प्रैक्टिकल फॉर्म होता है मीटर ब्रिज, टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स, उसकी जो सेंसिटिविटी होती है
वो मैक्सिमम सेंसिटिविटी होती है जब चारों रेजिस्टेंसेस इक्वल होते हैं। ओके, ये एक पॉइंट है। ओके, ये एक पॉइंट है। जब चारों की रेजिस्टेंस सेम होती है तब जाके मीटर ब्रिज की सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो सेम होने का मतलब P एंड Q आर सेम। सो ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट तभी मिलेगा जब ये ज्यादा सेंसिटिवली ज्यादा काम कर लेगा। वो कब कर लेगा? जब चारों रेजिस्टेंसेस सेम है, और चारों रेजिस्टेंसेस सेम होने का मतलब होगा P और Q जो है वो सेम है या अप्रोक्सीमेटली सेम है। और फिर जाके दूसरी बात भी है, मीटर ब्रिज जो है ना ही वो वेरी स्मॉल रेजिस्टेंसेस के लिए ज्यादा एक्यूरेट है, ना ही वो वेरी लार्ज रेजिस्टेंसेस के लिए ज्यादा एक्यूरेट है, मीनिंग कि मॉडरेट वैल्यूज के लिए एक्यूरेट है, मॉडरेट वैल्यूज के लिए ज्यादा एक्यूरेसी है। अब मॉडरेट को यहां पर हम स्मॉल मान के चलेंगे बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। पहला पार्ट जो है शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल, वो पार्ट तो एग्री कर रहा है। अब दूसरा पार्ट हमारा शुड बी मॉडरेट। अब मॉडरेट ऐसा कुछ पहले तीन ऑप्शंस में नहीं कहा गया है, सो मॉडरेट को हम स्मॉल मान के चलेंगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो ये होगा, ऑप्शन 4। ओके, ऑप्शन 4। सो 4 रेजिस्टेंसेस शुड बी अप्रोक्सीमेटली सेम, क्योंकि उस टाइम ज्यादा सेंसिटिविटी होती है मीटर ब्रिज की, और फिर मॉडरेट वैल्यूज होते हैं जो हम यहां पर स्मॉल मान के चलेंगे क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो यही सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A ball is projected with a velocity 10 meter per second at an angle of 60 degree with the vertical direction। ये इसमें एक ट्रिकी पॉइंट है, वर्टिकल डायरेक्शन। अगर ये पॉइंट आपने मिस किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अदरवाइज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। वर्टिकल डायरेक्शन के साथ y एक्सिस के साथ आपका एंगल दिया हुआ है। सो अगर हमारे पास ये xy कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप किसी पार्टिकल को लॉन्च कर रहे हैं यहां पर with some initial velocity u, वर्टिकल के साथ एंगल 60 डिग्री है। दिस इज इंपॉर्टेंट, वर्टिकल के साथ एंगल 60 डिग्री है। वर्टिकल के साथ 60 है तो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बन गया। ये अगर आपने किया है तो क्वेश्चन ठीक होगा। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी विल बी, हाईएस्ट पॉइंट पे जब ऐसे मूव कर लेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे हमें पता है वेलोसिटी होती है u cos थीटा, लेकिन वो थीटा जो वो हॉरिजॉन्टल के साथ इनिशियल एंगल है, नॉट वर्टिकल के साथ। वो थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ इनिशियल एंगल है। ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। ओके, बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो वो किसके बराबर होगा? u cos ऑफ 30 डिग्रीज। अब u के बारे में कहा गया है कि वो 10 के बराबर है। 10 into cos of 30 होता है √3/2, तो ये बन जाएगा 10/2 is 5 √3। ओके, 5 √3। सो ऑप्शन 4 5 √3 मीटर पर सेकेंड। ये सिंपल सा पॉइंट अगर आपको क्लिक हुआ है, देन दिस इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल सिंपल क्वेश्चन। अगेन इट कांट गो सिंपलर देन दैट। जस्ट वन ट्रिकी पॉइंट देयर। नेक्स्ट वन, मैच लिस्ट 1 and 2। ओके, हमें यहां से दिया हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूले दिए हुए हैं, यहां से फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं। मोस्टली आपको ये पता ही होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फेमस है m-1 L3t-2, ये पता होना चाहिए। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब ये एनर्जी है, फिर किसी भी टाइप की एनर्जी हो, एनर्जी और वर्क का सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है। फिर चाहे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला व्हिच इज m1 L2t-2। तो A जो है वो 2 के साथ मैच हो रहा है, लेट मी राइट इट हियर। A जो है वो 2 के साथ मैच हो रहा है, B जो है वो 4 के साथ मैच हो रहा है। ओके, B जो है वो 4 के साथ मैच हो रहा है। देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर आपको याद हो, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो एनर्जी को आपने डिवाइड बाय मास करना है। जब आप यहां पर डिवाइड बाय मास करेंगे, m and m विल कैंसिल आउट, L2t-2 बच जाएगा, L2t-2 वो रहा। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का होगा, कहां गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का होगा L2t-2। देन ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज ग्रेविटेशनल फील्ड। बेसिकली फील्ड होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास।
ओके और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड आपको पता होना चाहिए कि वो सेम होता है अर्थ के लिए एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज L1t-2, कोई भी एक्सेलरेशन हो L1t-2। तो कौन किसके साथ मैच हो रहा है? A मैचेस विद 2, B मैचेस विद 4, C मैचेस विद 1, C मैचेस विद लेट मी चेंज द कलर, C मैचेस विद 1 and then D matches with 3, D matches with 3। ओके अब चेक कर लें, A matches with 2, तो ये एक है और ये एक है, ये दो तो पहले ही रिजेक्ट हो, नहीं ये भी है, तो ये तो पहले रिजेक्ट हो गया। देन B मैचेस विद 4, B मैचेस विद 4 तो ये तो रहेगा, B मैचेस विद 2 तो ये तो पहले रिजेक्ट हो, B मैचेस विद 1 अब ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, B मैचेस विद 4 तो A और 1 और 4 रह गया। देन C मैचेस विद 1, C मैचेस विद 3 तो ये भी रिजेक्ट हो गया, C मैचेस विद 1 एंड D मैचेस विद 3 तो ये वाला ऑप्शन है। A मैचेस विद 2 वहां पर, B मैचेस विद 4 वहां पर, C मैचेस विद 1 वहां पर, D मैचेस विद 3 वहां पर। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 43 The area of a rectangular field in meters square of length 55.3 meter and breadth 25 meters after rounding off, this is important, the correct significant digit is, okay, area हमें निकालना है which is simply length into breadth। so length जो वो 55.3 है into breadth जो वो 25 है। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल याद करें सिग्निफिकेंट फिगर्स में, जिसके लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वही फाइनल आंसर में आपको रखना है। तो यहां पर लीस्ट जो है वो 2 है, तो फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहने चाहिए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो आता है 1382.5 which can be written as 13.825 into 10 to the power 2। so this can be approximated as, रिमेंबर हमें 2 ही रखने हैं, हमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, तो 2 ही यहां पर आने चाहिए। तो राउंड ऑफ करके वो 0.8 है तो ये राउंड ऑफ होकर 14 बन जाएगा। सो 14 into 10 to the power 2। ओके 14 into 10 to the power 2, ऑप्शन 2, 14 into 10 to the power 2। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। A capacitor of capacitance C equal to 900 picofarad is charged fully by 100 volt battery B as shown in figure। Then it is disconnected from the battery and connected to another uncharged capacitor of capacitance C equal to 900 picofarads। identical capacitors दोनों हैं, ये भी 900 picofarads हैं, ये भी 900 picofarads हैं। हमें बताना है कि फाइनल एनर्जी क्या होगी इस सिस्टम में, यहां पर फाइनल एनर्जी क्या होगी। सो आपने पहले क्या किया, कैपेसिटर को चार्ज कर दिया विद 100 वोल्ट बैटरी, तो इसमें चार्ज कितनी स्टोर होगी, एनर्जी कितनी स्टोर होगी, दैट विल बी 1/2 CV², फॉर्मूला है 3 है, तो यहां पर डेटा के हिसाब से 1/2 CV² हम लेंगे। सो दिस इज 1/2, C इज 900, पिको इज 10 to the power -12 तो फैरेड इंटू V इज 100, लेकिन स्क्वायर है, 100 इज 10 to the power 2, स्क्वायर के साथ बन जाएगा 10 to the power 4। नाउ दिस इज 4.5 into 10 to the power -6 joules। ये इनिशियल एनर्जी है यहां पर। अब आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट करने का मतलब अब जो यहां पर है वही रहेगा, चार्ज है, एनर्जी है वो वैसे ही है। अब जाके आपने इसी कैपेसिटर को आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर लगा दिया, काफी फेमस है। इस जब आप आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं, हाफ एनर्जी इज डिसिपेटेड, हाफ एनर्जी रिमेन्स। सो फाइनल एनर्जी जो होगी, okay, the electrostatic energy stored in the system, पूरे सिस्टम में क्या एनर्जी होगी, that will be half of the initial one। half gets, जब एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में चार्ज आ जाएगी तो some of the energy gets dissipated through the wires because of their resistance। एनर्जी हाँ, ये स्पेशल केस है, एनर्जी हाफ बन जाती है। so final energy जो होगी that will be half of the initial one। so 4.5 into 10 to the power -6 divided by 2, which is 2 into 2 is 4, 2 into 2 4 again, 5 into 10 to the power -6 joules, 2.25 into 10 to the power -6 joules, option 1। okay, 2.25 into 10 to the power -6 joules। Let's move on to the next one।
Two pendulums of length 1 to 1 centimeter and 100 centimeters start vibrating in phase. So initially they are in phase. At some instant, the two are at their mean positions in the same phase. The minimum number of vibrations of the shorter pendulum, after which the two are again in phase at the mean position is. So somewhere oscillate करने की पहली बात कि दोनों की लेंथ जो है वो डिफरेंट है. Remember टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी. मैं यहां पर इसे लिखूंगा ऐसे 2 पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट जी और अंडर रूट एल अलग अलग, क्योंकि जी कॉमन है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो उसे मैं अलग रखूंगा. सो दोनों की लेंथ सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम होगा. टाइम पीरियड डिफरेंट, लेंथ डिफरेंट है तो टाइम पीरियड भी डिफरेंट होगा. अब टाइम पीरियड डिफरेंट होगा तो ये कंटिन्यूअसली इन फेज नहीं रहेंगे. अब कभी ये बीच में इन फेज है, फिर फेज डिफरेंस कुछ आ जाएगा और कंटिन्यूअसली वो चेंज हो जाएगा और कुछ देर के बाद वो फिर से इन फेज हो जाएंगे. ओके, सो आफ्टर सम रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम ये इन फेज बन जाता है. मिनिमम टाइम बिटवीन टू सिचुएशंस जब ये इन फेज होते हैं, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा टी इज इक्वल टू T1 T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2. ओके, ये आपके पास फॉर्मूला है. डेल्टा टी इज इक्वल T1 T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2. अब ये यूज करते हैं 2 पाई डिवाइड बाय अंडर रूट जी इंटू अंडर रूट एल. सो यहां पर T1 और T2 दो है और दोनों में 2 पाई डिवाइड बाय अंडर रूट जी जो वो कॉमन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो वो बन जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी स्क्वायर. मल्टीप्लिकेशन है तो इसलिए दोनों का होगा तो स्क्वायर बन जाएगा. फिर जाके अंडर रूट ऑफ ए का होगा L1, दूसरे का होगा L2. सो L1 इंटू L2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2. 2 पाई डिवाइडेड बाय रूट जी, अगेन दोनों में कॉमन. अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो कॉमन हम निकालेंगे, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी कॉमन, अंदर बच जाएगा रूट एल. ए का होगा अंडर रूट L1 माइनस दूसरे का होगा अंडर रूट L2. तो ये अब 2 पाई डिवाइड बाय अंडर रूट जी स्क्वायर ऊपर है तो ये ए के साथ कैंसिल आउट होगा. तो क्या बचा, विल गेट ऊपर 2 पाई बाय अंडर रूट जी इंटू रूट ऑफ L1 L2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ L1 माइनस अंडर रूट ऑफ L2. ओके, ये बच गया. दिस इज टाइम बिटवीन टू सिचुएशंस जब ये इन फेज है. पहले इन फेज थे, कुछ टाइम के बाद फिर से इन फेज बन जाएंगे. कितने टाइम के बाद इन फेज बन जाएंगे, ये वो टाइम होगा. अब क्वेश्चन जो है वो हमें क्या बता रहा है निकालने के लिए. हमें बताया जा रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, हमें मिनिमम टाइम नहीं निकालना, मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन निकालना है. तो मीनिंग कि इस टाइम के दौरान कितनी वाइब्रेशंस हो गई है, कितनी ऑसिलेशंस हो गई है, वो हमें बताना है. किसका, शॉर्टर पेंडुलम का. शॉर्टर पेंडुलम जो वो दूसरा वाला है, ये L1 ये L2. शॉर्टर वाला 100 वाला हमें लेना है. शॉर्टर वाले की कितनी ऑसिलेशंस होंगे इस टाइम के दौरान, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. और शॉर्टर वाले का टाइम पीरियड T2 है. अब ध्यान दे, अगर टाइम पीरियड T2 है, ओके, अगर टाइम पीरियड T2 है तो मीनिंग एक ऑसिलेशन में टाइम T2 लग रहा है, तो n ऑसिलेशंस में कितना टाइम लग जाएगा, वो डेल्टा टी से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, वही हमारा ये डेल्टा टी है. दैट विल बी n इंटू T2. सो डेल्टा टी जो है दैट मस्ट बी इक्वल n इंटू T2, जिसमें n जो होगा दैट विल बी द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, दैट विल बी द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस. रिमेंबर दिस इज द टाइम टेकन बिटवीन टू सिचुएशन जब ये इन फेज है. इसी टाइम के दौरान कितनी ऑसिलेशंस होंगी, n इज व्हाट वी हैड फाइंड आउट. तो n यहां से इज डेल्टा t डिवाइडेड बाय T2. तो इसको डिवाइडेड बाय T2 करना है, which is delta t divided by remember t2 2 pi by root g under root l 2 pi by root g under root l t2 का है तो under root l2. तो ये यहां पर आप डिवाइड कर लें, डेल्टा t का वैल्यू जो है वो यहां से लाए. सो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू इसको डिवाइड करना है इससे, तो पहले मैं यही लिखूंगा
1 divided by 2 pi by root g into under root of L2, फिर जाके ये सब यहां पर ऊपर है 2 pi divided by under root g into under root L1 L2 divided by root L1 minus root L2. ओके, अब यहां पर देखें कुछ कैंसिलेशन होगा. 2 pi by root g, 2 pi by root g will cancel out. Under root L2 will cancel out. तो क्या बचा? बचा ऊपर सिर्फ बच गया अंडर रूट ऑफ L1. थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है. ऊपर सिर्फ अंडर रूट ऑफ L1, नीचे अंडर रूट ऑफ L1 माइनस अंडर रूट ऑफ L2. तो हो गया. So number of oscillation, number of vibrations is under root of L1 divided by under root of L1 minus under root of L2. अब L1 जो वो 121 है. 121 का रूट जो है that is 11 divided by अंडर रूट L1 फिर से 121 का रूट जो वो 11 है माइनस अंडर रूट L2 100 है तो उसका रूट 10 के बराबर है. So 10 नीचे 11 minus 10 is 1, that is 11 divided by 1 is just 11. So what will be the number of oscillations during this time? 11. So which is option 3. थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता होगा थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन कर पाएंगे आप अगर फॉर्मूला पता है तो. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. A nucleus of mass number 189 splits into two nuclei having mass number 125 and 64. 125 and 64. इसे मैं A1 कहूंगा, इसे A2 कहते हैं. पहले वाले का मास नंबर, दूसरे वाले का मास नंबर. The ratio of radii of two daughter nuclei respectively is, ratio of radii आपने बताना है. Again very simple, formula based है. Formula आपको पता होना चाहिए कि radius of the nucleus is proportional to cube root of the mass number. Cube root of the mass number, a power 1 by 3. ओके, a पावर 1 by 3. तो रेशियो क्या बन जाएगा? R1 डिवाइडेड बाय R2 बन जाएगा A1 डिवाइडेड बाय A2 पावर 1 by 3 को कॉमन ले लें. डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है तो ऑर्डर सेम रहेगा 1 by 2 1 by 2. सो A1 और A2 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें. A1 is 125 डिवाइडेड बाय A2 is 64 power 1 by 3 which means cube root. Cube root of 125 is 5 और cube root of 64 is 4. तो 5 is to 4 जो है वो आपका आंसर है. 5 is to 4. रिमेंबर पहले 125 वाला मेंशन है जिसको मैं 1 बोल रहा हूं, बाद में 64 वाला मेंशन है जिसको मैं 2 कह रहा हूं. तो पहले जो मेंशन है 1 वो ऊपर रहना चाहिए, बाद में जो मेंशन है वो नीचे रहना चाहिए. अगर आप उल्टा कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 4 is to 5 और वो भी ऑप्शंस में तो वैसे गलत हो जाएगा. सो 5 is to 4. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. Two transparent media A and B are separated by a plane boundary. The speed of light in those media are 1.5 into 10 to the power 8 meter per second and 2 into 10 to the power 8 meter per second. So ये medium 1, ये medium 2 respectively. The critical angle of the ray of light for those two media is critical angle total internal reflection के लिए. Okay, total internal reflection के लिए. Remember sin of theta c, the critical angle, वो होता है mu2 divided by mu1. Refractive index of the second medium divided by refractive index of the first medium. लेकिन यहाँ पर refractive index वाली information नहीं है, speed of light की information है. अब याद करें refractive index जो होता है वो होता है c divided by v, velocity speed of light in vacuum divided by speed of light in the medium. तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा c divided by v2 divided by c divided by v1. So this implies sin of theta c is equal to, ये उल्टा होगा, c and c will cancel out, तो v1 divided by v2, which means theta c जो है that is equal to sin inverse of v1 जो है that is 1.5 into 10 to the power 8 divided by v2 जो है that is 2 into 10 to the power 8. 10 to the power 8 and 10 to the power 8 cancels out. 1.5 is 3 by 2, वो बन जाएगा 3 by 4. हमें fractions में दिया गया है. 3 by 4 is 0.75. So this is sin inverse of 0.75. Sin inverse of 0.75. Sin inverse of 0.75. Okay. So again, just formula based question है. Next. Okay. So we have this
बूलियन अलजेब्रा जो हमें यहां पर यूज करनी है, वी हैव दीस गेट्स हियर। ये पहली बात है नॉट गेट है, तो ये सिंपली इन्वर्ट कर लेगा। ये नैंड गेट है, रिमेंबर यहां पर ये सर्कल है, ये भी नैंड गेट है, और ये खाली एंड गेट है, यहां पर आगे सर्कल नहीं है, ये खाली एंड गेट है। तो यहां पर पहली बात कि ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ये उसे ए को कन्वर्ट कर लेगा। अब नोट कर लें इसके लिए इनपुट क्या क्या है, यहां से तो ए है और यहां से बी है, यहां से बी है, तो ए और बी। तो नैंड गेट जो है वो क्या आउटपुट देगा, y1 में इसे कहता हूं y1। नैंड गेट इज एंड इज मल्टीप्लीकेशन और नैंड फिर कॉम्प्लीमेंट है, तो a इंटू बी उसका कॉम्प्लीमेंट। a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो होता है a प्लस a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन्स थ्योरम जो आप यूज करते हैं, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर आइए, इस नैंड गेट के इनपुट्स क्या क्या हैं। एक तो यहां से b है, वो तो सीधे ही b है। दूसरा जो है वो यहां से आ रहा है a, लेकिन उसको ये कन्वर्ट करा है इनटू a कॉम्प्लीमेंट, तो दूसरा इनपुट जो है वो a कॉम्प्लीमेंट है, नॉट a कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां पर जो आउटपुट आएगा y2, अगेन नैंड गेट है, तो मल्टीप्लीकेशन विद द कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पर जो दो इनपुट्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, a कॉम्प्लीमेंट इनटू b, उसका कॉम्प्लीमेंट। फिर यही चीज यूज करके वो क्या बन जाएगा, यहां पर मैं लिखता हूं, वो बन जाएगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। अब a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है दैट इज सिंपली a, ओके, सो दिस इज सिंपली a प्लस b, ओके, दिस सिंपली a प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ओके। सो y1 जो है वो अब इस एंड गेट है, दिस इज सिंपली एन एंड गेट, इस एंड गेट का एक इनपुट है, ये दूसरा इनपुट है y2, y1 और y2 अब दो इनपुट्स हैं। अब ये सिर्फ एंड है, ये अब नैंड नहीं है, आगे वो सर्कल नहीं है, एंड है, which is जिसमें आउटपुट जो है वो सिंपली मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहां पर जो आउटपुट है y, दैट विल बी सिंपली y1 into y2। y1 और y2 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, वो है a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट इनटू ये है a प्लस b कॉम्प्लीमेंट। तो ओपन अप कर ले, ये बन जाएगा a कॉम्प्लीमेंट इंटू a प्लस a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट इंटू a, b कॉम्प्लीमेंट इंटू a प्लस b कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, ओके। b complement, this is b complement, that is b complement, okay. So a complement into a जो है वो 0 के बराबर होता है, और b complement into b जो है वो भी 0 के बराबर होता है। So ये बन जाएगा a complement b complement प्लस b complement a complement, b complement को कॉमन निकालिए, अंदर बच जाएगा a complement प्लस a complement प्लस a is 1, तो बच जाएगा सिर्फ b complement, ओके, बच जाएगा। सो फाइनल आउटपुट जो होगा वो b का कॉम्प्लीमेंट होगा, b का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब जरा चेक करें कहां पर है, b is 0 उसका कॉम्प्लीमेंट 1, तो ये तो ठीक है, b is 1 उसका कॉम्प्लीमेंट 0, ये भी ठीक है, ये 0 है, ये भी 0 है, तो ये तो गलत है, ये 1 है उसका कॉम्प्लीमेंट, ये तो गलत है, ये दो गलत है, वो दो ठीक थे। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो 1 0 1 0, दिस इज द करेक्ट वन। b 0 उसका कॉम्प्लीमेंट 1, b 1 उसका कॉम्प्लीमेंट 0, b 0 उसका कॉम्प्लीमेंट 1, b 1 उसका कॉम्प्लीमेंट 0, सो दिस इज द करेक्ट वन। आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, अलग अलग ट्रूथ टेबल बना दे, इसका अलग से ट्रूथ टेबल बना दे, इसका अलग से ट्रूथ टेबल बना दे, फिर जाके यहां पर ट्रूथ टेबल्स को कॉमन बना दे। तो 1 0 1 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, let's move on to the next one. From Ampere's circular law, for a long straight wire of circular cross section carrying a steady current, the variation of magnetic field in the inside and outside region is a solid cylinder. आप इसको पढ़ते हैं Ampere's law के applications में, infinite solid cylinder जिसमें current flow करती है। तो उसमें आपको याद होना चाहिए B inside जो है that is directly proportional to R, और B outside जो है that is inversely proportional to R।
बी आउटसाइड जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो देखें लीनियरली इंक्रीजेस, यस ऑफ कोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो लीनियरली इंक्रीजेस function of distance r, linearly increasing function of distance r, fine, linearly directly proportional to r है तो it's linearly increasing with distance r up to the boundary, मतलब ये inside वाला part है of the wire, then decreases 1 with 1 by r dependence for the outside region, वही 1 by r dependence है for the outside region, तो option 1, inside directly proportional to r, outside inversely proportional to r. So let's move on to the next one. Last one. Given below are two statements. One is labeled as assertion A, the other is labeled as reason R. Assertion A. The stretching of a spring is determined by the shear modulus of the material of the spring. Okay. This is a little tricky one. वो जरा देख लें. अगर हमारे पास यहां पर स्प्रिंग है, आप उसको elongate कर लेते हैं, आपने उसको elongate कर दिया, लेंथ किसकी इंक्रीज होगी? ये बात इंपॉर्टेंट है नोट करना। लेंथ जो है वो स्प्रिंग की इंक्रीज हो रही है, स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो रही है। जिस वायर की स्प्रिंग बनी हुई है उस वायर की लेंथ इंक्रीज हो रही है? नहीं, स्प्रिंग elongate हो रही है, लेकिन वायर की जो लेंथ होगी वो तो सेम ही रहेगी, वो जितना यहां पर थी उतना ही यहां पर है। अब आपने क्या किया है, ये जो डिफरेंट टर्न्स है स्प्रिंग के, उनके बीच में गैप डेवलप किया है। वो गैप डेवलप करने से स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज होगी, वो एक्सटेंड हो गया, लेकिन वायर की लेंथ जो है वो चेंज नहीं हो जाएगी। सो वायर लेंथ इज नॉट चेंजिंग, स्प्रिंग लेंथ इज चेंजिंग, वायर लेंथ इज नॉट चेंजिंग। इन दो को डिस्टिंग्विश करना है इस क्वेश्चन में, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, वायर लेंथ इज नॉट चेंजिंग, ओके, वायर लेंथ इज नॉट चेंजिंग, ये बात जरा याद रखें, नो चेंज इन लेंथ। फिर क्या है? ओके, फिर जाके वॉल्यूम। अब यू में से इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई है, तो स्प्रिंग का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा या स्प्रिंग का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, लेकिन वायर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो जाएगा। वायर का वॉल्यूम तब चेंज हो जाएगा जब उसकी थिकनेस चेंज हो जाएगी। यहां पर तो वो आप ऐसे कुछ नहीं कर रहे हैं। स्ट्रेट वायर अगर आपके पास है तो आप उसे खींच लेंगे, तब जाके कुछ रेडियस चेंज होगा, लेंथ इंक्रीज होगी। लेकिन यहां पर जो है वो कॉइल बनी हुई है, स्प्रिंग बनी हुई है, तो वायर की ना ही लेंथ चेंज हो रही है, ना ही वायर का रेडियस चेंज हो रहा है। तो लेंथ ऑफ द वायर, नॉट लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, लेंथ ऑफ द वायर इज फिक्स्ड, radius of the wire is fixed, which means area of cross section is fixed, which means volume जो है that is fixed. Volume of the wire, not volume of the spring, volume of the wire is fixed. अब ना ही लेंथ वायर की चेंज हो रही है, ना ही वॉल्यूम चेंज हो रहा है, दैट मींस ना ही बल्क मॉडुलस इन्वॉल्व है, ना ही यंग्स मॉडुलस इन्वॉल्व है। लेकिन स्प्रिंग को जब आप elongate करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो रही है, उसकी शेप चेंज हो रही है, दैट मींस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस जो है दैट इज इन्वॉल्व। तो शेयर मॉडुलस इज इन्वॉल्व, सो असर्शन जो है वो ठीक स्टेटमेंट है। ओके, असर्शन जो है वो ठीक स्टेटमेंट है। अब जाके रीजन जो है उसको पढ़ लें। The coil spring of copper has more tensile strength than a steel spring of the same dimensions. स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कॉपर से। ये आपको कह रहा है कि कॉपर की ज्यादा है स्टील से, नहीं, स्टील की ज्यादा होती है कॉपर से, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हुआ। तो असर्शन जो है A is right, A is true, R is false. A is true, R is false. Okay, option 1. So this was the last one. So all the best. I hope आप लोगों ने अच्छा किया होगा. I hope आप लोग select भी होंगे. Okay, all the best, all the very best. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi.